हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चे आई होप कि ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ बहुत ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚੇ फाइनल एग्जाम आ। आई होप ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਆ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੇਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਅੱਛੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ? ਟੋਟਲ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ठीक है, यूनिट 1 के अंदरों, और एक क्वेश्चन आएगा बच्चे इस यूनिट 6 के अंदरों। सो इस वीडियो के विच बच्चे असी सारे जिन्ने भी क्वेश्चनस एक्सपैक्टेड, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट जिद्दां दे भी क्वेश्चनस होणगे बच्चे आपां सारे ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 60-70% ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਾ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਜੋ +1 ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਿਕਲਟ ਆ ਸਾਡੇ YouTube ਦੇ ਉੱਪਰ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਰਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਫ੍ਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਆ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਚਾਰਜਿਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਹਿ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖਣ 'ਚ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ। 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਬੱਚੇ 2 ਕੁਐਸਚਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਤੱਕ ਸਿਲੇਬਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਤੱਕ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੇ। ਫਸਟ ਕੀ ਆ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਚਾਰਜਿਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੂਲਮ ਫੋਰਸ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਬੱਚੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਧਰੋਂ ਗੌਸ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟਰ, ਇਹ ਆਰਟੀਕਲਸ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਬੱਚੇ ਗੌਸ ਥਿਓਰਮ ਦੀਆਂ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਔਰ ਕਪੈਸਿਟਰ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ, ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਬੱਚੇ ਟੋਟਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਿ ਲਓ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ PDF ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ PDF ਦਾ ਬੱਚੇ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਆਫ ਫੋਰਸ ਇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਸਟੈਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲ ਜੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 30-40% ਹੈ। ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਰੇਅਰ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਕਹਿ ਲਓ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਛ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰਸ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਕੂਲਮਸ ਲਾਅ ਦੇ ਵੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਸਮ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ 5 ਮਾਰਕਸ ਦੇ, ਸੋ ਮੈਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ, ਵਟ ਇਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼
इंटेंसिटी ड्यू टू अ सोर्स चार्ज एट एनी पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर एक पॉइंट के उपर असी कोई सोर्स चार्ज रख दिता इन इलैक्ट्रिक फील्ड उहदे इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उन्होंने किस तरीके नाल डिफाइन किया जा सकता, फोर्स जिन्नी भी वो एक्सपीरियंस करेगा बाय अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा। ठीक है, सो आ चार्ज रख दिता, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रख लिया बच्चे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज द्वारा जिन्ना भी इन्हें फोर्स एक्सपीरियंस किया उस फोर्स नूं असी की कह देंगे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, दैन बच्चे ਉਹਦਾ फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਓਬਟੇਨ ਐਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਫॉर द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज तो जोड़ा तुसी इलैक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना। सो ये आर्टिकल भी पेपर दे विच आने के चांसिस बच्चे 40-50% चांस ही रहिंदे आ या लेस दैन 40-50 हो सकता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल बच्चे ये नहीं आ, बट ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ टारगेट बच्चे 70 आउट ऑफ 70 आ, तो तुसी देखिया होएगा बच्चे पेपर कदे भी ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ नहीं आ सकता। कुछ ना कुछ बच्चे कम से कम 10 to 15 मार्क्स का पेपर बच्चे इदा का हो सकता, अनइम्पोर्टेंट हो सकता, जोड़ा कदे क्वेश्चन आया ही नहीं, कुछ उदा का हो सकता, क्योंकि इन्हां नंबरस ने ही थोड़ी परसेंटेज हिलानी है, इन्हां नंबरस ने ही थोड़ी जी कह लो परसेंटेज इनक्रीज या डिक्रीज करनी है। इस करके जोड़े बच्चे इंटैलीजेंट आ बच्चे तुसी हर एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके नाल पढ़ के जानी है। सो बच्चे नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सियल लाइन। इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन असी ऑलरेडी बच्चे ऊपर कर चुके हैं, दैट्स वाई मैं हुण दोबारा एक्सप्लेन नहीं करांगी। सो आ बच्चे असी एक्सप्लेन कर चुके हैं। उन्होंने कहा ड्राइव एन एक्सप्रैशन एंड बच्चे टाइप हो गया एन, ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन। बच्चे एक्सियल लाइन के उपर तुसी जिहड़ी आ फाइंड आउट करनी आ। सो बच्चे यदि PDF अदरवाइज थानू टैलीग्राम चैनल के उपर मिल जाएगी। बाई चांस टैलीग्राम चैनल के उपर यदि PDF थानू नहीं मिलती तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थानू इहदा बच्चे जिहड़ा गूगल ड्राइव का लिंक है वह भी मैं थानू प्रोवाइड कर देंगी। सो देखो सब तो पहला बच्चे तुसी कंसीडर स्टार्ट करना है। कंसीडर एन इलैक्ट्रिक डाईपोल कंसिस्ट ऑफ एन चार्जिस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। असी बच्चे दो चार्जिस ले लिए, एक प्लस क्यू ले लिया और एक माइनस क्यू ले लिया, पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के उपर ले लिया और डिस्टेंस कितनी लैनी है तुसी 2A। अगर बच्चे तुसी 2L के नाल ऑलरेडी मतलब थोड़ा माइंड दे विच पहला तो ही सैट आ कि असी 2L लेना। दिनेश की बुक ने L के नाल सॉल्व किया होया, जो मॉडर्न आ बच्चे वो A दे नाल लिखते हैं। सो AL जो भी थोड़ा दिल करता तुसी उहदे नाल कर सकते हैं। डाईपोल की लेंथ कितनी आ 2A। सो सेंटर तो अगर असी यदि पार्टीशन कर दें तो बच्चे ए दो अलग अलग पार्ट्स हो जाएंगे। कंसीडर अ पॉइंट P एट अ डिस्टेंस R। असी की किया एक पॉइंट की किया कंसीडर कर लिया। सो एक पॉइंट P कंसीडर किया जो सेंटर तो लैके बच्चे की डिस्टेंस कितनी आ R डिस्टेंस। हुण बच्चे इन्नी डायग्राम बनाने तो बाद हुण इस पॉइंट P के उपर दो तरह दी इलैक्ट्रिक फील्ड लगणगियां। बच्चे जिहड़ा P पॉइंट आ ये ऑलवेज टेस्ट चार्ज होएगा। अगर टेस्ट चार्ज आ तो बच्चे ने बाहर ऑलवेज पॉजिटिव होएगा। आ वाला पॉजिटिव चार्ज आ बच्चे आ भी पॉजिटिव आ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पॉजिटिव की करेगा एक दूसरे नू रिपेल करेगा। दैट इज़ वाई बच्चे इहदी इलैक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड है। क्लीयर हो गया। सो असीं इहदा नाम रख दिता E1 इलैक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हुण आ जाओ बच्चे नेगेटिव चार्ज आ रहा, नेगेटिव चार्ज और इत्थे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन्हें इनवर्ड जिहड़ी तुहाडी इलैक्ट्रिक फील्ड लगेगी। क्लीयर हो गया बच्चे। E1 एंड E2 किस तरीके नाल आया और किद्दां तुहाडे आह जिहड़े चार्जिस इलैक्ट्रिक फील्ड दीयां डायरैक्शनस असीं ड्रॉ कीतियां। क्लीयर हो गया। इन्हां लिखण तो बाद असीं लिखांगे इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हुण बच्चे पॉजिटिव चार्ज मतलब आ रहा पॉजिटिव चार्ज करके इस पॉइंट P के उपर इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी आ E1। पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे नू रिपेल कर रहे तो बाहर वाले पासे नू आ, तो किहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड असीं पता करन लगे आ E1। सो असीं लिख दी E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज इत्थे कितना पिया आ Q। सो लिख दिता Q। डिस्टेंस कितना आ B तो लैके P तक। ठीक है। हुण देखो B तो लैके P तक सानू डिस्टेंस ही नहीं पता कितनी आ, बट सानू ये पता कि सेंटर तो लैके P तक की डिस्टेंस अगर आ रहा
ਆ ਛੋਟੀ ਜੀ डिस्टेंस कितनी आ ए आ, तो आ छोटी जी डिस्टेंस कितनी बच गई R माइनस ए। सो आ छोटी जी बच गई R माइनस ए। सो इसकी जगह तो असी की लिख दिता BP की जगह तो R माइनस ए। बच्चे इक्वेशन क्लीयर हो गई। सिमिलरली बच्चे मैं थानू E2 लिख के दिखाती हाँ। E2 हुण साडा कितना आएगा, आ रहा बच्चे E2 इज इक्वल टू आ सी नेगेटिव चार्ज और इधर सी पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो अंदर वाले पासे नूं जा रही आ। हुण बच्चे P पॉइंट तो लैके इस पॉइंट A तक की डिस्टेंस की गल कर रहे हैं। सो किद्दां फार्मूला लिखांगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बच्चे A तो लैके P तक। सो AP स्क्वेयर वट इज़ AP, हुण इहदी वैल्यूज़ लिख लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाय A तो लैके P तक कितना बच्चे आ रहा A इन्ना क डिस्टेंस और आ डिस्टेंस टोटल कितना हो गया R। सो A प्लस R या R प्लस A जिद्दां भी तुसीं लिखना चाहते बच्चे लिख सकते हैं। इत्थे स्क्वेयर आ दैट इज़ वाई इत्थे की कर दिता स्क्वेयर। सो साडे कोल E1 भी आ गया बच्चे, आ तुहाडी E2 की इक्वेशन आ गई। E1 एंड E2 दोनों इक्वेशनस बच्चे आ गई। नैक्सट असीं लिखिया E1 जिहड़ी आ ग्रेटर दैन E2 आ। हुण बच्चे E1 किद्दां ग्रेटर होगी, हुण आ चीज़ ध्यान नाल समझो। आ वाला चार्ज बच्चे आ P पॉइंट के ज़्यादा नज़दीक पे है, मतलब ਇਹਦਾ इफैक्ट इत्ते थोड़ा ज़्यादा होएगा। ये कौन है E1, तो डेफिनेटली E1 ग्रेटर होएगा। E2 किहदे करके आ, ਇਹਦੇ करके। E2 ਇਹਦੇ करके आ तो दूर पिया तो ਇਹਦਾ इफैक्ट थोड़ा जिहा घट होएगा। इत्थों असीं एस्टीमेट लगा लिया कि E1 जिहड़ी इलैक्ट्रिक फील्ड आ वो E2 दे नालों ज़्यादा ग्रेटर आ, बट ऑपोजिट डायरैक्शन च आ। इस करके वड्डे चों छोटा माइनस कर दित्ती। इलैक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई E1 माइनस E2। जस्ट बच्चे वैल्यूज़ पुट कीतियां, बाकी सारी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन खुद ट्राई करके देखो। अगर बाई चांस किते भी प्रॉब्लम आती है तो बच्चे तुसीं पुछ सकते हैं। ठीक है जी। सो सारी कैलकुलेशन सॉल्व करन तो बाद लास्ट विच बच्चे जिहड़ी तुहाडी इक्वेशन है उत्थे की आ जाएगा Q इंटू 2A जिहड़ी आ किहदे इक्वल है, डाइपोल मूवमेंट के अंदर इक्वल है विच इज़ P। सो आ 2R SH लिखा रहन दिता और इहदी जगह ते लिख दिता P। सो इक्वेशन दे विच आ गया 2RP। P इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी, इस करके उहदे उत्ते वैक्टर पा दिता। क्लीयर हो गया जी। नैक्सट बच्चे थोड़ी E की इक्वेशन आ गई। अगर वैक्टर फॉर्म तो हटावांगे तो वैक्टर्स हटा के दैन बच्चे स्पैशल केस अगर असी जड़ा R की वैल्यू बहुत ज़्यादा ग्रेटर लै लीए या साडा डाइपोल बहुत ज़्यादा शॉर्ट लै लीए दैन आ वाली इक्वेशन आएगी। क्लीयर हो गया जी। सो बच्चे किते भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज़ कमेंट सैक्शन दे विच पुछ लेना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो नूं लाइक ज़रूर कर देना। नैक्सट क्वेश्चन है बच्चे डिफाइन डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की आ, ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलैक्ट्रिक फील्ड। बच्चे अदरवाइज ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुसी देख रहे हैं डाइपोल मोमेंट 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है, एक्सप्रैशन 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है और अंडर वट कंडीशन द टॉर्क विल बी मैक्सिमम ये 1 मार्क्स का बन सकता। टोटल मिला के हो गया 5 मार्क्स का। अगर थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करना हो तो इस तरीके ना क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके बच्चे थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। बहुत ईजी जो आर्टिकल आ बच्चे, काफ़ी बच्चे ने जिन्होंने शुरू तो फिजिक्स की तैयारी की बच्चे उन्होंने आ क्वेश्चन आता होएगा। अगर बच्चे तुसी हले तक कुछ नहीं पढ़िया तो क्वेश्चन स्किप कर दो, नवा कुछ ना पढ़ के जाओ, जो पढ़िया होया सिर्फ उन्होंने रिवाइज करो। ठीक है। सो बच्चे लास्ट में मैक्सीमम किद्दां आया जो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होएगी। जिद्दां थीटा 90 पुट किया साइन 90 इक्वल्स टू 1। सो साइन 90 की 1 पुट की तो टॉर्क तुहाडे कोल PE आ जाएगा विच इज़ द मैक्सीमम वैल्यू। नैक्सट बच्चे क्वेश्चन आ इक्वेटोरियल लाइन। दिस इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। बच्चे इक्वेटोरियल लाइन हो सकता जिदा मैं स्क्रीन पर शो किया, काफ़ी बच्चे ने इदा किया होवे, कुछ बच्चों ने हो सकता बच्चे पैलोग्राम लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन के नाल किया होवे। ठीक है। कुछ बच्चों ने E1 डिवाइडेड बाय उहदियां डायरैक्शन से लैके किया होएगा। सो जिद्दां भी तुसी कीता आ ऑलरेडी जिस मैथड के नाल कीता होया उसे मैथड के नाल तुसी ये क्वेश्चन सॉल्व करना। अदरवाइज बच्चे इक्वेटोरियल लाइन एक्सियल लाइन काफ़ी मैथड्स के नाल कीता जा सकता। सो कोई भी मैथड करके आओ बच्चे, बोर्ड के टीचर्स नूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैथड्स आंदे हुंदे आ। सो घबराना नहीं आ कि साडे टीचर ने होर तरीके नाल करवाया है ना, ऑनलाइन टीचर होर तरीके नाल करवा रहे आ, जिहड़े एजुकेयर ऐप ते कह लो लैक्चर्स लग रहे टीचर्स वो होर तरीके नाल करवा रहे आ। बच्चे एक ही आर्टिकल बहुत तरीके दे नाल करवाए जा सकते आ। क्लीयर हो गया। नैक्सट आ जाओ बच्चे गॉस थ्योरम है। बच्चे गॉस थ्योरम स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। अगर पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा ईजी वाला आ गया तो आ जाएगा, अदरवाइज ये आने के चांसिस नहीं आ। सो इसका आंसर बच्चे तुसी देख सकते हैं, बहुत ईजी जो आंसर है।
ठीक है, एक बारी करके ज़रूर जाना बच्चे, स्किप नहीं करनी कोई भी चीज़ अगर 70 आउट ऑफ 70 वाला टारगेट है। नेक्स्ट आ जाओ बच्चे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ 80 to 90% ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏਗਾ, 80 to 90% ਚਾਂਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਟਲੀਸਟ 5 ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੱਚੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਚਰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਟੀਚਰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲਿਖਿਆ। ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਉਹ 'ਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਇੰਨਾ ਸੋਹਣੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਪੈਨਸਿਲ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ, ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦੇ 3 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ, ਸ਼ੀਟ ਔਰ ਸਫੈਰੀਕਲ ਸ਼ੈਲ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ, बहुत सारे बच्चे लेटस कंसिडर एक्सैक्ट्रा लिखते ही नहीं आ। बच्चे अगर नहीं लिखते तो नंबर पक्का कट्टे जाएंगे, नहीं तो 1-2 लाइन्स जरूर लिख के आओ ताकि बच्चे इत्थों ही अद्धा के नंबर तो एटलीस्ट तुहाडा बनता होवे, ठीक है। उस तो बाद आ जाओ बच्चे लेटस कंसिडर। इस बुक दे विच बच्चे जिस बुक तो मैं लिया गया इत्थे बहुत घट लिखा होया, अदरवाइज थोड़ी लाइन्स बच्चे अच्छी तरीके नाल लिखो। दैन लैमडा जी आ, लैमडा असीं की लै रहे हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लिख रहे हैं, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला की होंदा है, चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ, सो क्यू डिवाइडेड बाय एल। हुण बच्चे कोई असीं की कीता, एक थिन आ वाली कह लो वायर लै ली। हुण वायर के आले दुआले बच्चे इत्थे पॉजिटिव चार्ज तुसीं लगाना है। जिद्दां ही तुसीं पॉजिटिव चार्ज दिता तो की होएगा, इहदे आले दुआले बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड जिहड़ी आ क्रिएट हो जाएगी। जिहड़ियां तुहानूं डॉटेड लाइन्स दिख रही ना, आ वालियां ਇਹ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ P ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਰੋ ਐਨ ਇਮੇਜਨਰੀ ਸਿਲੰਡਰ ਅਸੀਂ ਡਰੋ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ R ਆ, ਲੈਂਥ L ਆ ਔਰ ਗੌਸੀਅਨ ਸਰਫੇਸ ਮਤਲਬ ਉੱਤੇ ਚਾਰਜ ਕਿੰਨਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ Q ਤੋਂ ਨਿਕਾਲ ਲਓ ਬੱਚੇ ਲੈਮਡਾ L। ਸੋ ਆ ਗਿਆ Q ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ ਲੈਮਡਾ L। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम बच्चे इक्वेशन की होंदी आ, क्लोज्ड इंटैग्रल E वैक्टर डॉट DS वैक्टर इज इक्वल्स टू चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। सरफेस आ तां पैर विच S पा दो। इस Q की वैल्यू असीं ऑलरेडी बच्चे की क्या आ कि लैमडा L आ। सो इत्थे की पुट कर दिता लैमडा L, ठीक है। ये साडी इक्वेशन आ गई। हुण बच्चे आ पूरी इक्वेशन अगर ध्यान नाल देखी जाए, इहदे अकॉर्डिंगली 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड आ। दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ सैकेंड पार्ट और जो सेंटर वाला पार्ट है ये की है तुहाडा थर्ड पार्ट आ रहा, तुहाडा थर्ड पार्ट। 3 पार्ट्स दे विच इहनूं डिवाइड करन लग्गियां। सो आही क्लोज्ड इंटैग्रल नूं बच्चे 3 पार्ट्स दे विच असीं डिवाइड कर दिता। आही पार्ट नूं इहनूं 3 पार्ट्स दे विच डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट, सैकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट इक्वल टू किहदे आ गया लैमडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। बच्चे डॉट प्रोडक्ट चक दो। हुण इत्थों जो डॉट प्रोडक्ट रिमूव करांगे तो वैक्टर्स भी हट जाएंगे, आ जाएगा EDS cos थीटा। हुण थीटा थीटा की वैल्यू पुट करन लग्गियां तो ध्यान नाल डायग्राम देखो बच्चे। इलैक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इधर नूं ही रहिंदी आ, एक पासे नूं जिधर इलैक्ट्रिक फील्ड होएगी बच्चे इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन कदे चेंज नहीं होएगी। तो DS इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया। इधर डाउनवर्ड सरफेस एरिया, इधर बच्चे सेम पासे ही सरफेस एरिया होएगा। हुण ध्यान नाल देखो साडे एंगल्स किन्ने बन रहे, नंबर 1 दे उपर किन्ना बन रहा 90 डिग्री, नंबर 2 ते किन्ना बन रहा ऑल्सो 90 डिग्री, बट इत्थे एंगल किन्ना बन रहा 0 डिग्री। मतलब कि फर्स्ट और सैकेंड दे उपर एंगल किन्ना बन रहा तुहाडा 90 डिग्री, फर्स्ट और सैकेंड दे उपर बच्चे आ रहा फर्स्ट इत्थे बनता पाया 90 डिग्री, सैकेंड दे उपर 90 डिग्री और फर्स्ट दे उपर 0 डिग्री। वट इज़ cos 90? cos 0 की हुंदा बच्चे, cos 0 1, cos 90 0, आ भी 0, आ भी 0। इत्थे की बच गया क्लोज्ड इंटैग्रल EDS, डॉट चक्या गया, cos 0 की जगह ते असी 1 पुट कर दिता। सो चलो जी बच्चे वैल्यूज़ पुट करनियाँ स्टार्ट करांगे। cos 90 इक्वल टू 0, cos 90 इक्वल टू 0, सिर्फ आ टर्म बच गई साडे को। दिस इज क्लोज्ड इंटैग्रल EDS इज इक्वल्स टू
ਲੈਮਡਾ L ਓਵਰ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਟਰਮ ਬਚ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, E ਇਜ਼ ਅ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਟਰਮ, ਸੋ ਟੇਕ ਆਊਟਸਾਈਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਊਟਸਾਈਡ ਲਿੱਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस curved surface area of cylinder which is 2 pi RL। ठीक है, 2 pi RL ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਜਸਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਈਨਲੀ E ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬੱਚੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੀਟ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੈਂਥੀ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੈਲ ਵਾਲਾ, ਸਫੈਰਿਕਲ ਸ਼ੈਲ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 3 ਦੇ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਬੱਚੇ 10th ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ SI ਯੂਨਿਟ ਲਿਖੋ ਔਰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਐਟ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਆਈਸੋਲੇਟਿਡ ਯੂਨਿਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਵੀ ਆਨ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਂਸਿਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਇਹਦੀ PDF ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲਿੰਕ ਵੀ ਨੀਚੇ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਓਪਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਐਕਸੀਅਲ ਔਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਨਾ ਐਕਸੀਅਲ ਔਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਂਟਾ ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੇਅਰਫੁਲੀ ਬੱਚੇ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਆ ਐਟ ਐਨੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਕਸੀਅਲ ਔਰ ਇਕੁਆਟੋਰੀਅਲ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਔਰ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਰਿਟਨ ਨੋਟਸ ਹੈ ਇਹ, ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕੱਲਾ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਥਿਓਰੀ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁੱਲ ਮਾਰਕਸ ਆ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਐਨਰਜੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਅ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਰਜ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਬੱਚੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ 3 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਆਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡਾ ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ। ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ 90 to 100% ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੌਸ ਥਿਅਰਮ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਆ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਡਾਇਗਰਾਮ, ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ, ਨੋ ਕਟਿੰਗ, ਸਾਰਾ ਇੱਕਸਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ 5 ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਆ ਬੱਚੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਣਾ ਆ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ 2 ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਲਈਆਂ। ਬੱਚੇ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੈਰਲਲ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਬੱਚੇ ਸਾਡੀ WhatsApp ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਪਿੱਛੇ ਡਾਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਬੱਚੇ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਏਰੀਆ A ਆ ਆਫ ਈਚ ਪਲੇਟ ਐਂਡ ਸੈਪਰੇਟਡ ਬਾਈ ਅ ਡਿਸਟੈਂਸ A, ਦੈਨ ਕਪੈਸਿਟਰ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ, ਬੱਚੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, C0 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ A ਓਵਰ D। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਦੈਨ ਸਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ
डाइलैक्ट्रिक ऑफ स्लैब ऑफ थिकनेस टी। बच्चे हुण थिकनेस असी कोई कंसिडर कर ली भी कितनी आ रही है, डी थिकनेस, टी थिकनेस, आ वाली थिकनेस कितनी आ, टी। ठीक है जी। इंट्रोड्यूस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर दैन इलैक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस टू ई ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ डाइलैक्ट्रिक। बच्चे बाहर कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड सीगी, ई नॉट, अंदर कितनी आ, ई आ, ई पी पोलराइजेशन करके रिड्यूस होगी। दैन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के उपर बच्चे जो पोटेंशियल वो कितना होएगा, वी इज इक्वल टू ई नॉट। बच्चे आ वाली ई टी मतलब कि आ वाली ई पी, ठीक है, ई पी टी। सो प्लस बाहर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड बच्चे साडी कितनी आ, बाहर वाली इलैक्ट्रिक फील्ड आ ई नॉट, ई नॉट ते इधर बच्चे डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस कितनी आ, डी। सो आ गया ई नॉट, बाहर वाली डिस्टेंस कितनी आ, डी, अंदर वाली विच माइनस कर दो, माइनस टी। सो दो इक्वेशन आ, एक आ बन गई, एक आ, दोनों नू ऐड कर दिता। सो बच्चे ध्यान नाल देखना है, बच्चे ऐड वाला इक्वेशन ही नहीं पाते। जिहड़ी बच्चे ई आ वो किहदे इक्वल आ वाली जिहड़ी पोलराइजेशन वाली है, दिस इज सानू बच्चे इन्ना पता कि जिहड़ा डाइलैक्ट्रिक कांस्टेंट के आ वो किहदे इक्वल हुंदा आ, ई नॉट ओवर ई दे इक्वल हुंदा, ई नॉट। ठीक है। सो ई किहदे इक्वल होएगा, के डिवाइडेड बाय, सॉरी बच्चे आ टर्म उपर चलेगी, के नीचे आ गया, ई नॉट ओवर के। सो आ वाली ई की जगह ते असीं की पुट कर दिता, ई नॉट ओवर के। हुण इहदे विचों बच्चे ई नॉट टेक कॉमन, बाहर लै लिया, अंदर की बच गया, टी ओवर के डी माइनस टी। सो इनू बच्चे बाकी इलैक्ट्रिक फील्ड ई नॉट की वैल्यू कितनी हुंदी आ, अपसाइलन सिग्मा ओवर अपसाइलन नॉट। सिग्मा किहदे इक्वल है बच्चे, सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाय अपसाइलन नॉट, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया, क्यू डिवाइडेड बाय एरिया। अपसाइलन नॉट तो ऑलरेडी बच्चे नाल आ। फिर बच्चे नैक्सट वैल्यूज़ पुट करते जाना, इनू सॉल्व करके तुहाडा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लीयर हो गया। सो ईजी क्वेश्चन है बच्चे, लास्ट में रिजल्ट लिखना नहीं भूलना कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जी इनक्रीज हो जाएगी जो असी डाइलैक्ट्रिक स्लैब जी इंसर्ट की बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। क्लीयर होगी राजे। अगर क्वेश्चन दे विच किते भी प्रॉब्लम होवे, कुछ ना समझ लगे तो बच्चे जरूर पूछ लेना। ये साडे सीगे 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 1। चलो बच्चे हुण स्टार्ट करते हैं सैल्फ असैसमेंट टैसट। इहदा की मतलब आ, हुण बच्चे क्योंकि कल का ही पेपर आ साडा, तो असीं बैठ के आंसर नहीं लिख सकते, बट देखो तुहानूं ये दोनों क्वेश्चनस दे विचों कुछ आंदा कि नहीं आंदा। हुण बच्चे तुहाडा पहला क्वेश्चन आया होया आ कि स्टेट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। आ गया गॉस थ्योरम का क्वेश्चन, नाल आ गया हॉलो स्फीयर का बच्चे आउटसाइड इनसाइड ऑन द सरफेस करना, और पाके आ गया कैपेसिटर की आ, कैपेसिटर ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अगर डाइलैक्ट्रिक स्लैब पार्शियली इंसर्ट किया जाए तो की होएगा, मतलब डाइलैक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन ही आ बच्चे तुहाडा। ठीक है, दोनों विचों एक करना। हुण देखो बच्चे मैं तुहानूं कहा भी गॉस थ्योरम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कैपेसिटर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही क्वेश्चन आ गए, तुहाडी तो लॉटरी लग गई, इदां दा क्वेश्चन आ गया। तो सैकेंड क्वेश्चन देखो, गॉस थ्योरम की आ बच्चे, स्टेट गॉस थ्योरम एंड ड्राइव इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। आ गया बच्चे अगेन गॉस थ्योरम का क्वेश्चन, ये नाल और पाके आया होया इलैक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलैक्ट्रिक डाइपोल रीराइट करनी बच्चे एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइनस दियां क्वेश्चन। हुण ये किहड़ा क्वेश्चन आ बच्चे, इत्थे बहुत सारे बच्चे गलती करके आंदे आ, बच्चे इक्वेटोरियल और एक्सियल देखिया तो इलैक्ट्रिक फील्ड वाला आर्टिकल तुसी लिखे आना। इत्थे किहड़ा आर्टिकल आ, इलैक्ट्रिक पोटेंशियल। इलैक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब जिहड़ा बच्चे इदां वाला आर्टिकल है, ठीक है, परपेंडिकुलर वाला। सो आ वाला आर्टिकल जिहड़ा तुसी करके आना आ। डन। नैक्सट आ जाओ बच्चे थर्ड क्वेश्चन। ये बच्चे सैल्फ असैसमेंट टैसट का मतलब देख लो थानू क्वेश्चन आते कि नहीं आते, इदां दी ही चॉइस जिहड़ी थानू पेपर दे विच होएगी। नैक्सट आ स्टेट गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की आ, यूजिंग इट ड्राइव एन एक्सप्रैशन फॉर द, अगेन बच्चे उही क्वेश्चन आया होया, सफेरिकल शैल आ, इनसाइड और आउटसाइड पता करना। दैन कैपेसिटर की आ, अगेन बच्चे डाइलैक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन नाल आया होया, मतलब दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। अगेन आ जाओ बच्चे गॉस थ्योरम की आ, गॉस थ्योरम दे विच इनफाइनाइट प्लेट आ गया, मतलब आता गया गॉस थ्योरम, इनफाइनाइट प्लेन शीट आ गई। हुण देखो बच्चे एनर्जी स्टोर्ड जिहदे विच U इज टू हाफ CV स्क्वेयर वाला आ, वो वाला क्वेश्चन आ गया। हुण देखो थोड़ा जिहा लैस इंपॉर्टेंट है,
बट अगर तुसी गॉस थ्योरम अच्छी तरीके नाल प्रिपेयर करके आए हुए आ, बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जाना है। डायग्राम सर्कल जिहड़े आ बच्चे कड़ा या चूड़ी अपने हत्थ विच कुछ ना कुछ पा के जाना है, ताकि उत्थे जाके सर्कल बिल्कुल गोल लगा सको आपां। नहीं तो अपनी कंपस अपनी नाल लैके जाओ कि बिल्कुल नीट एंड क्लीन डायग्राम्स होण। ठीक है जी। सो देखा जाए तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नैक्सट आ बच्चे इलैक्ट्रिक फ्लक्स की है, SI यूनिट की आ। हुण देखो इनू देख के घबरा नहीं जाना भी हाए इलैक्ट्रिक फ्लक्स आ गया, ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही है नहीं सी। बच्चे इस तरीके ना AB सैक्शनस बन के आ सकती है। सो इलैक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन SI यूनिट लिखण तो बाद चार्ज इनफाइनाइट शीट बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला ही आया होया। सो ਇਹਦੇ ਨਾਲ और क्वेश्चन देख लो, कैपेसिटेंस की है SI यूनिट दस दो, दैन डाइलैक्ट्रिक स्लैब की होंगी आ। अगे आ जाओ बच्चे, अगेन गॉस थ्योरम का क्वेश्चन है। गॉस थ्योरम की है, दैन इनसाइड आउटसाइड ते सफेरिकल शैल, अगेन ये डाइलैक्ट्रिक स्लैब का क्वेश्चन आया होया। उस तो बाद बच्चे नैक्सट भी जोड़ा आ गॉस थ्योरम वाला ही क्वेश्चन आ। सो ये बच्चे आ वाले क्वेश्चन जोड़े मैं थोड़ा और पा के 7 क्वेश्चन दिखाए आ, ये अलग अलग सैंपल पेपर्स के बच्चे मैं क्वेश्चन ਚੱਕ के दिखाई आ। सो मन के चलो बच्चे गॉस थ्योरम और डाइलैक्ट्रिक स्लैब ਜਿਹੜਾ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂसेस ਮੰਨ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੋ ਬੱਚੇ कि 100% ही आ कि डाइलैक्ट्रिक स्लैब और गॉस थ्योरम का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। जे गॉस थ्योरम ना होएगी तो बच्चे कैपेसिटर डाइलैक्ट्रिक स्लैब मिल ही जाएगा थानू पेपर के विच, अगर ये नहीं होएगा तो गॉस थ्योरम नाल होएगी होएगी। क्लीयर हो गया। दोनों विचों एक क्वेश्चन तो बच्चे थानू मिल ही जाएगा। सो अगर जिन्ने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं बच्चे, ये 4 क्वेश्चनस भुल के भी छड्ड के नहीं जाने, बहुत अच्छे तरीके नाल प्रिपेयर करके जाओ। बार बार कह रही हैं बच्चे, ये क्वेश्चन इन्नी अच्छी तरीके नाल प्रिपेयर करके जाओ। डायग्राम्स बिल्कुल नीट एंड क्लीन, नो कटिंग, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। जिद्दां ही टीचर देखे तो 5 मार्क्स सीधे सीधे आ जाण साडे। सो 10 मार्क्स के 5 कह लो क्वेश्चन आने आ, साडे 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आने आ। बस इदा कहो कि पेपर 10 नंबर तो सीधे सीधे साडे हत्थ विच पए आ, भी 10 नंबर तो आ ही जाने आ। क्लीयर हो गया। हुण बच्चे असीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस करांगे 6th यूनिट दे। चलो बच्चे हुण आ राइट अजम्पशनस साइन कन्वेंशनस। बच्चे इत्थे लिखा होया राइट, इहदा मतलब तुसीं लिखणे ही आ। अजम्पशनस लिखोगे तो 1 नंबर आएंगे, साइन कन्वेंशनस लिखोगे तो 1 नंबर, इत्थों मतलब टोटल हो गए 2 नंबर। ड्राइव द मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर। हुण बच्चे सानू पता मिरर 2 तरह के हुंदे आ, एक हुंदा आ कनकेव मिरर और एक हुंदा आ कन्वैक्स मिरर। जिहड़ा बच्चे कन्वैक्स आ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਹੀ केस आ और कनकेव ਦੇ 2 केस आ, एक रियल और एक वर्चुअल। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ कनकेव मिरर आ। बच्चे कनकेव मिरर ਦੇ 2 केसिस आ, बट इन्होंने नहीं क्या रियल करना कि वर्चुअल करना, थोड़ी मर्जी है, थोड़ी लॉटरी लग गई, चाहे रियल करके आ जाए चाहे वर्चुअल करके आ जाओ, बट उत्ते हैडिंग जरूर मैंशन कर देना कि तुसी केड़ा क्वेश्चन सॉल्व करन लगे हैं। ठीक है। हुण जिद्दां बच्चे सैकेंड क्वेश्चन है राइट अजम्पशन साइन कन्वेंशन ड्राइव मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वैक्स मिरर। कन्वैक्स मिरर का एक ही केस आ बच्चे, ਇਹਦਾ मतलब इकलौता केस तुसी करके आना आ। सो एक बार बच्चे ਇਹਦਾ आंसर चैक कर लैने आ। पेपर विच आने के चांसिस ਇਹਦੇ थोड़े जे लैस आ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, बट येस बच्चे कनकेव मिरर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तुसी देख सकते पेपर च कितनी बारी आया होया, 2012 13 14 16 17 22 कंटीन्यूसली क्वेश्चन एक तरह का आ ही रहा है। बट कन्वैक्स वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं आ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ टारगेट 70 आउट ऑफ 70 ਆ, कुछ ਛੱਡ के नहीं जाना। जिन्हों का बच्चे टारगेट पास होना या अच्छे नंबर लैके जाना, 55+ मार्क्स लैके जाना आ, डेफिनेटली बच्चे कनकेव मिरर तो असीं छड्ड के नहीं जाना। आ रहे बच्चे थोड़े साइन कन्वेंशनस। सब तो पहले तुसी साइन कन्वेंशनस लिखना। अगर मिरर फॉर्मूला फॉर कनकेव मिरर आ जाए वैल रियल इमेजिज फॉर्मड, तो बच्चे रियल इमेज इस तरीके ना डायग्राम बिल्कुल। सो बच्चे आ तो सीगी थोड़ी कह लो बुकिश डायग्राम। आ बच्चे हैंडमेड डायग्राम आ, तुसी देख सकते हैं कितनी नीट एंड क्लीन बच्चे साफ सुथरी बनी हुई आ। डायग्राम देखते सारे ही कह लो टीचर की रूह खुश हो जानी भी कितनी साफ सुथरी डायग्राम बनी हुई है ना। इस तरीके नाल बच्चे तुसी डायग्राम ड्रॉ करके आनी आ, मतलब दिल खुश करके आना अपने टीचर्स का कि पेपर बहुत सोहना बच्चे ने लिखा होया। बाई चांस गलती नाल भी किते गलती हो जाती है तो टीचर मतलब वो नंबर कट ही ना पावे, उत्थे इन्ना सोहना पेपर करके आओ। ठीक है। कुछ बच्चे इंटैलीजेंट होंदे आ, बट उन्हां दी हैंडराइटिंग इन्नी गंदी हुंदी आ, उन्हां दे पेपर रिप्रजेंटेशन इन्नी गंदी हुंदी आ कि वैसे ही नंबर कटवा के आ जाते, गलती कोई नहीं हुंदी। ईवन सारा कुछ सही लिखिया हुंदा, लिखिया ही इन्ना गंदा गंदा हुंदा कि टीचर नूं इदां लगदा भी शायद इहने पता नहीं कितों नकल मार के कर लिया या फिर किसी पर्चियां तो कर लिया, क्योंकि बच्चे तुहानूं पर्सनली उत्ते कोई नहीं जानदा होएगा।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਉਤੋਂ ਹੀ ਜੱਜ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕਟਿੰਗ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ, ਹੈਂਡਰਾਈਟਿੰਗ ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕਰੋ, ਵਾਈਟਨਰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਟੀਚਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਹੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਆ, ਪੂਰੇ ਪੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਪੇਪਰ ਬੱਚੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਪੈਨਸਿਲ ਔਰ ਸਕੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ABCD ਐਰੋਜ਼ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਰਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ ਜਦੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬਣੇ। ਸੋ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੱਚੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥਿਓਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਨਵੈਕਸ ਮਿਰਰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਲੈਟ ਅਸ ਕੰਸੀਡਰ ਇਹ ਵੋ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਆ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਅਗਰ ਲੀਨੀਅਰ ਮੈਗਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਆ ਤਾਂ ਲਿਖੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਿਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਬੱਚੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ, ਇੱਕ ਆ ਵੇਵ ਆਪਟਿਕਸ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਰੇ ਆਪਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਆ ਟੈਲੀਸਕੋਪ। ਬੱਚਿਆਂ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਆ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ, ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਬੱਚੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ, ਕੰਪਾਊਂਡ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ, ਟੈਲੀਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵਿਦ ਰਿੰਪਲ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਡਬੈਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੇ ਅਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਓ ਡਰਾਈਵ। ਹੁਣ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਲਿਖ ਦੂੰਗੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਲਿਖੂੰਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਦਿਸ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਬੱਚੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਲੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਫੋਕਲ ਲੈਂਥ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਫਰੈਕਟਿਵ ਇੰਡੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਂਸ ਮੇਕਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ ਬੱਚੇ, ਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਥਿਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਪਰਚਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਸਮੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਬਜੈਕਟ ਲੈਣਾ ਆ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਰੇਜ਼ ਐਂਡ ਰਿਫਰੈਕਟਿਡ ਰੇ with principal axis are small, ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣੇ ਉਹਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਸ ਆ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇ ਆਫ, ਬੱਚੇ ਰੇ ਇੱਥੇ ਟਕਰਾਈ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਈ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬੈਂਡ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਟਕਰਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚਲੇਗੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ, ਠੀਕ ਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣ ਗਈ I1 ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵਰਚੁਅਲ ਇਮੇਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ I ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੀ ਬੱਚੇ ਨੋਰਮਲ ਇੱਧਰ ਡਰਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆ, ਸੋ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਬੱਚੇ ਆ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ C1 ਔਰ ਆ ਕੀ ਆ ਸੈਕਿੰਡ ਪਾਰਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ C2,
क्लीयर हो गया जी। इन्नी डायग्राम बनाने तो बाद हुण असीं की करना है, इहनूं पार्ट्स विच सॉल्व करना स्टार्ट करना। इहदा नाम रख दो x, p1 y, मतलब सिर्फ इन्नी क पोर्शन की गल करांगे, सिर्फ इन्नी पोर्शन की। इन्ने पोर्शन दे विच ऑब्जेक्ट कौन आ बच्चे तुहाडा? u, और इमेज डॉटेड लाइन इत्थे तक बन रही सी आ वाली, तो फाइनल इमेज तुहाडी इत्थे तक कौन आ? v1। हुण याद रखनी है बच्चे u और v1 की गल करांगे। सो फस्ट पार्ट है बच्चे, अगर तुसी डायरैक्ट आंसर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। हुण किद्दां लिखांगे बच्चे, इनू लिखना सिखांदी हाँ मैं तुहानूं। काफ़ी बच्चे कहते हैं कि मैडम सानूं इहदे विच थोड़ा जिहा शॉर्ट सिखा दो, ईजी तरीके नाल सिखा दो। हुण देख लो, आ वाला पोर्शन की है n1, अंदर वाला पोर्शन की है n2। हुण बच्चे डेंसर मीडियम पहला लिखांगे n2। बच्चे n2 दे करके n2 इधर सीगे, आ जाके थोड़ी इमेज बनी i1, इत्थे तक डिस्टेंस कितनी है? v1। सो आ गया डिवाइडेड बाय v1। नैक्सट बच्चे u ऑलवेज नैगेटिव हुंदा तो इत्थे नैगेटिव साइन, इधर की लिखांगे n1 डिवाइडेड बाय इधर तक बच्चे डिस्टेंस की है थोड़ी u, तो इनू लिख दिता u। ठीक है, इधर v1 सी तो v1, दूसरी तरफ u इज इक्वल टू बच्चे n2 की है पॉजिटिव तो n1 की है नैगेटिव। सो n2 माइनस n1 डिवाइडेड बाय बच्चे इत्थे इहदी जो नॉर्मल ड्रॉ किया इत्थों लैके इत्थे तक कितना आ गया? r1। सो इत्थे लिख दिता असी r1। आ थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। हुण सैकेंड इक्वेशन की गल करते हैं। सैकेंड इक्वेशन बच्चे इहदे करके बनी, इहदे करके। ठीक है, आही जिहड़ा बच्चे v1 ना, इन्हें एक्ट करना एज एन ऑब्जेक्ट की तरह। सो असी किद्दां लिखांगे? हुण ऑब्जेक्ट नूं लिखना किद्दां स्टार्ट करना, मतलब कि ऑब्जेक्ट बाद चों लिखांगे। इमेज बच्चे दी इमेज कित्थे बनी? आ रही इमेज, फाइनल इमेज की आ v। सो इत्थे लिख दित्ती v। दूसरा की आ ऑब्जेक्ट कौन सी? v1। सो इत्थे लिख दिता v1 डिवाइडेड बाय r2। इक्वेशन क्लीयर होगी बच्चे? आ किद्दां लिखिया? सो इत्थे लिख दिता v1 r2। हुण फस्ट एंड सैकेंड इक्वेशनस नूं कंबाइन किया, सॉल्व किया, तो फाइनली तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल दे विच समझना चाहते हैं तो बच्चे प्लेलिस्ट दे विच जाके +2 फिजिक्स के बच्चे सारे लैक्चर्स है आ, कोई भी क्वेश्चन तुसी समझना चाहते हैं तो डिटेल दे विच बच्चे समझ सकते हैं। ठीक है, दैन बच्चे 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो स्पैशल केस तुसी जरूर करके आने आ। अगर स्पैशल केस करना भुल गए बच्चे नंबर कट्टे जा सकते हैं। अगर मेरे हाथ में पेपर लगता तो बच्चे मेरे तो पक्का मार्क्स कट होणगे। इसी तरीके अगर मेरे वर्गा कोई टीचर होएगा, स्पैशल केस के नंबर कट्टे जा सकते हैं। 5 मार्क्स के विच बच्चे कदे भी ये ना कहो कि सानू किहड़ा स्पैशल केस पूछे सी। ट्राई करो स्पैशल केस लिख के आओ। ठीक है, अगर उन्होंने कहा जंप्शन साइन कन्वेंशन सारा कुछ लिखो, फिर अगर लेंथ बहुत ज़्यादा वध रही है तो स्पैशल केस स्किप कर दो। अदरवाइज बच्चे कोशिश करो कि लिख के ही आओ। बच्चे इस साल दे लई अगर सफेरिकल जिहड़ा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अगर तुसी स्किप करके जाना चाहते हैं तो बच्चे स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सी क्वेश्चन। बट हुण 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने, 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ नहीं रहे, तो सफेरिकल सरफेस वाले क्वेश्चन बच्चे तुसी थोड़े जे स्किप करके जा सकते हैं। ठीक है, थोड़े जे लैस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे विच आ गए बच्चे ये। नैक्सट आ जाओ बच्चे लेंस, फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस। एक बार ये भी अच्छे तरीके ना पढ़ लेना राजे, क्योंकि ये भी पहला 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट सी, बट हुण 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो ये भी थोड़ा लैस इंपॉर्टेंट हो गया। टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन, अगर बच्चे पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट करना होवे तो टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन 5 मार्क्स पूछा जा सकता। अदरवाइज बच्चे ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन सी। नैक्सट आ जाओ बच्चे प्रिज्म वाला क्वेश्चन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो प्रिज्म वाला क्वेश्चन बच्चे स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म हो गया या प्रिज्म हो गया, ये क्वेश्चन जोड़े आ पूछे जा सकते हैं। बट ये भी थोड़े जे बच्चे ये कह सकते हैं कि आ सारे क्वेश्चन आ वाले बच्चे 6th 7th 8th 9th इन्हां दे आने के चांसिस 30 to 40% आ। पेपर का लेवल का थोड़ा डिफिकल्ट लेवल करना हो तो क्वेश्चन आएंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आने के चांसिस काफ़ी घट है। हुण बच्चे टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप तुसी देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हों के पेपर के आने के चांसिस 80 to 90% आ। सो ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके प्रिपेयर करने हैं। हाइगन्स प्रिंसीपल
बच्चे हाइगन्स प्रिंसीपल दो तरह की है, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये भी बच्चे अदरवाइज 3 मार्क्स के क्वेश्चनस कह लो इंपॉर्टेंट है साडे। सो 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए तुसीं इहनूं प्रिपेयर कर सकते हो। 5 मार्क्स के विच बच्चे इन्हां दे आउण दे चांसिस थोड़े घट होंदे आ 5 मार्क्स के विच। सो 3 मार्क्स के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दैन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट बच्चे फ्रिंज विर्थ वाला इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिहड़ा कि 5 मार्क्स के अंदर पेपर दे विच आउण दे चांसिस बहुत ज़्यादा रहिंदे आ, बहुत ज़्यादा रहिंदे आ। तां मतलब बच्चे 80 to 90% चांस है कि ये पेपर दे विच आ सकदा आ। दैन डिफ्रैक्शन बच्चे पेपर दे विच आउण दे चांसिस बहुत घट रहिंदे आ, 40 to 50% चांस हुंदे आ। स्टेट एंड प्रूव बैवेस्टर्स लॉ एंड पोलराइजेशन ऑफ लाइट बच्चे ये भी पेपर दे विच बहुत बारी रिपीट हुंदा। सो ये भी पेपर दे विच आउण दे चांसिस ज़्यादा रहिंदे आ। सो आई होप बच्चे ये वीडियो तुहानूं बहुत ज़्यादा हैल्पफुल होएगी और तुहानूं क्लीयर हो गया होएगा भी किहड़े क्वेश्चनस पेपर दे विच आ सकदे आ, किहड़े क्वेश्चनस पेपर दे विच नहीं आ सकते। हुण सैल्फ असैसमेंट टैसट आ बच्चे जिहड़े तुहाडे सैंपल पेपर्स की हैल्प दे नाल बनाए गए आ। हुण तुसीं देख लो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन की है टैलीस्कोप। मैं तुहानूं ऑलरेडी कहता कि टैलीस्कोप हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, एक करके ही जाना। आ गया टैलीस्कोप मतलब तिन्नां विचों एक क्वेश्चन आ गया। नाल क्वेश्चन आया होया हाइगन्स प्रिंसीपल दा, प्रूव करना रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन्स प्रिंसीपल। मतलब दोनों ही लॉज आ गए तो बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा बच्चे अगर तुसीं इहनूं अटैम्प्ट करना स्टार्ट कर दिता। एक क्वेश्चन 15 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाना चाहिए बच्चे 5 नंबर वाला, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ पेपर कंप्लीट होएगा। अगर ਤੁਹਾਡਾ एक क्वेश्चन 20-25 मिनट लै रहा तो बच्चे बहुत ਤੁਹਾਡਾ पेपर कह लो भी लेट हो जाएगा या छुट जाएगा पेपर, ठीक है। सो एक क्वेश्चन के उपर बच्चे 15 हद मैक्सीमम 20 मिनट भी बहुत ज़्यादा आ, 15 मिनट के कंप्लीट होना चाहिए। हाइगन्स प्रिंसीपल बच्चे बहुत लेंथी हो जाएगा, ईवन टैलीस्कोप भी लेंथी आ। ट्राई करो स्पीड पूरी अपनी फास्ट रखो तो हैंड राइटिंग नीट एंड क्लीन। 21st क्वेश्चन देखो बच्चे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आया होया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया बच्चे वही 3 क्वेश्चन के विचों एक क्वेश्चन। नाल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरीमेंट आ गया बच्चे इंटरफेरेंस वाला, जिहदे विच फ्रिंज विर्थ मतलब बीटा पता करना आ। नैक्सट आ जाओ लेंस मेकर फार्मूला बच्चे आ गया, तीनों क्वेश्चन के विचों एक क्वेश्चन। हाइगन्स प्रिंसीपल आया होया और रिफ्लैक्शन वाले नूं बच्चे तुसीं एक्सप्लेन करना आ। नैक्सट आ लेंस मेकर फार्मूला की आ गया बच्चे तिन्नां विचों एक क्वेश्चन, ठीक है। नैक्सट है डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करनी आ। काफ़ी बच्चों को डिफ्रैक्शन बहुत डिफिकल्ट लगती है बच्चे, बट बहुत ईजी क्वेश्चन है भी। नैक्सट आ जाओ कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया बच्चे तिन्नां विचों एक क्वेश्चन। नैक्सट आ डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन करनी आ। हुण मान लो बच्चे कंपाउंड माइक्रोस्कोप सानूं आंदी नहीं है, नीचों भी डिफ्रैक्शन आ गया, पै गया इत्थे ही पंगा, सानूं तो दोनों क्वेश्चनस नहीं आते। इस करके बच्चे उपरों टैलीस्कोप, माइक्रोस्कोप और लेंस मेकर फार्मूला भुल के भी तिन्नां विचों कुछ भी छड्ड के नहीं जाना, बहुत अच्छी तरीके नाल प्रिपेयर करके जाओ। नैक्सट क्वेश्चन आ बच्चे लेंस मेकर फार्मूला आ गया तिन्नां चों एक क्वेश्चन। नैक्सट आ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वाला फ्रिंज विर्थ दे नाल तुसीं एक्सप्लेन करना है। नैक्सट अगेन टैलीस्कोप आ बच्चे, टैलीस्कोप दे नाल हाइगन्स प्रिंसीपल, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगेन बच्चे बहुत लेंथी वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है। सो ये सी बच्चे साडा सैल्फ असैसमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस की PDF जिहड़ी कि तुहानूं टैलीग्राम चैनल और यूट्यूब दोनों के उपर मिल जाएगी। अगर इस तो इलावा तुहानूं किसी होर तरह की भी बच्चे हैल्प की जरूरत है, कल तुहाडा पेपर है तो तुसी कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकते हैं। सो जान तो पहला बच्चे वीडियो नूं लाइक करना है, मैक्सीमम शेयर करना है और जिन्ना ज़्यादा अपने चैनल नूं बच्चे सबसक्राइब कर सकते हैं तो सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं जरूर प्रेस करके जाओ ताकि जो नैक्सट वीडियो आएगी तो नोटिफिकेशन मिल जाए तुहानूं तो तुसी अपने फ्रेंड सर्कल दे विच उहनूं शेयर कर सको। थैंक यू सो मच।